Okay, so far we discuss about exception handling, and we are on the topic of this written statement versus finally. So this written statement basically dominates, finally basically dominates this written statement. So think is like that. If there is only written statement present inside try catch block, first finally will be executed, that written statement will be considered. The meaning is there is a try and sys out and they are returning from here. So even though we are putting written statement here, before returning it is going to execute this finally block. Okay, so there is only one situation where the finally block won't be executed, whenever JVM shut down. So whenever we are using system.exit 0, in that case only finally block will not execute, otherwise finally block is going to execute. So for example, another example they have given here, try, inside try they are putting system.exit 0 they are passing, so this is going to JVM ही यहाँ पे shut down हो जाएगा. Okay, so now actually finally not going to execute. So remember guys, written statement में interviewer it's quite popular question, written statement के साथ में we discuss, but remember these things, written statement will execute later, first finally block will be executed. Okay, difference between final, finally, finalize. Okay, इस पे हम लोग, okay, there is only name similarity, otherwise all three are different. Okay, so final is a keyword already we know. Before the class if we are using, we cannot make the child class of it. Before the variable if we are using final, we cannot change the value of it. Before the method if we are using, we cannot override it. So finally is a must executable block where actually we write cleanup code, which should be executed always irrespective of whether exception raised or not. इससे exception से फर्क नहीं पड़ता, ये हर सिनेरियो में, हर केस में ये आपको एग्जीक्यूट होगा ही होगा. Finally, whether handle or not, finalize. So it is a method which should be executed by garbage collector before destroying any object to perform cleanup activities. So ये basically कब execute होता है, गार्बेज कलेक्टर इसको यूज करता है जैसे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, उससे पहले वो फाइनलाइज को कॉल करेगा. तो फाइनलाइज जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड, हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं एंड वी कैन राइट समथिंग कि आप ऑब्जेक्ट को पता करना है कि आई मीन व्हेन इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, तो उसमें हम मैसेज वी कैन पुट इन दिस फाइनलाइज मेथड. ओके, सो when compared with finalize, it is highly recommended to use finally block to maintain cleanup code because we can't extract behavior. So I mean ऐसा हम लोग ऐसा नहीं कि फाइनलाइज मेथड लिख दें फाइनली ब्लॉक की जगह पे, नो. तो इसका बिहेवियर गार्बेज डिपेंडेंट है, तो ये हम एनालाइज नहीं कर सकते कि कब एग्जीक्यूट होगा. वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच फाइनली, तो ये बहुत सारे इसके सिनेरियो दिए हुए हैं. ओके, सो वन बाय वन लेट्स वी कैन डिस्कस each and every scenario. Okay, try with catch, this will work. Okay, and try, and there is a some child class in a catch block, then it's a parent class. Another try with multiple catch block, multiple catch block में जो hierarchy होगी वो child to parent होगी. Okay, try with finally, look at guys,
जरूरी नहीं कि ट्राई के साथ में आपको कैच ही लिखना हो, फाइनली भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। ओके, अकेला ट्राई नहीं लिख सकते, अकेला कैच ब्लॉक नहीं लिख सकते, एंड इंडिविजुअल फाइनली भी नहीं लिख सकते। ओके, ऑल आर यूज आइदर ट्राई कैच के ट्राई के साथ में कैच लगाओ या फाइनली लगाओ। ओके, आज ट्राई कैच फाइनली तीनों लिखो आप इसमें। ओके, सो ट्राई एंड कैच द प्रॉब्लम इन दिस। ओके, ऐसा नहीं कर सकते कि ट्राई के बाद आप सिस आउट लिख दो उसके बाद कैच लिखोगे, नहीं, वी हैव टू राइट आफ्टर ट्राई नो कैच ब्लॉक। ओके, तो ऐसा हम इसमें गैप नहीं कर सकते। ट्राई कैच देन हेलो देन अगेन कैच, तो ये भी नहीं, ये कि सीक्वेंस में ही आएगा, बीच में आप कोई और स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। सो ट्राई कैच एंड बीच में जैसे इन्होंने सिस आउट लिखा, आफ्टर द बॉडी ऑफ कैच देन फाइनली, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, ओके, ट्राई कैच फाइनली, फाइनली दो बार नहीं लिख सकते आप इसमें ना, फाइनली एक ही बार, कैच मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो आप इसमें। ट्राई कैच कैच और दैट वी कैन डू, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हो, मल्टीपल फाइनली ब्लॉक आप नहीं लिख सकते। ओके, सो ट्राई एंड कैच एंड हियर इज अनदर कैच। आई थिंक दे आर यूजिंग हायरार्की, इन्होंने उल्टा कर दिया, पेरेंट क्लास को पहले लिख दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाद में लिखा। Okay, so this is also not going to work out here. So try catch and another catch block. ऐसा नहीं कर सकते कि सेम एक्सेप्शन को दो बार आप कैच कर रहे हो, अर्थमेटिक तो वो भी हम नहीं कर सकते। ओके, सो inside the try there is a try, there is a catch block, inside catch again we can write try catch. Okay, so try a catch finally block, so inside finally if any exception is coming we can write try catch. I mean indirect try catch also we can write, there is no issue. Inside try if we are writing try, so इस try का catch भी लिखना कंपलसरी है, otherwise this will expect without catch or finally, something between need to put after this try, either catch or either finally. Okay, so try finally. ओके, ऐसा नहीं कर सकते कि ट्राई के बाद फाइनली उसके बाद कैच, नहीं, हायरार्की वुड बी इन दिस वे, ट्राई कैच एंड फाइनली। ओके, आइदर ट्राई कैच और ट्राई फाइनली, बट ऐसा नहीं कर सकते कि ट्राई फाइनली कैच, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, so before coming here let me tell you one more thing. There is a feature comes Java 1.7 try with resource. Okay, try with resource comes in Java 1. Java 1.7. Okay, this may ask in a interview, अगर ट्राई विद रिसोर्स यूज कर रहे हो तो फाइनली लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्लीन अप कोड लिखने की जरूरत आपको नहीं है, दैट ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू क्लोज द कनेक्शन, सो ऑल दैट थिंग। ओके, ट्राई विद रिसोर्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस इन जावा 1.7. so in Java, try with the resource statement is a try statement that declare one or more resource. मतलब if you will let me come to here. Okay, the resource is an object, यहाँ resource का मतलब है इनका कोई object that must be closed after finishing the program, मतलब finally block में हम उसका
उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं. The try resource statement ensure that each resource is closed at the end of statement execution. You can pass any object that implement java.lang.autoclosable, which include all objects which implement java.io.closable. The following example write to a string into a file. It uses an instance of file output stream to write data in the file. File output stream is a resource that must be closed after the program is finished. So in this example closing resource is done by itself. So इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो अर्लियर अभी तक जो ट्राई हमने देखा है वो कुछ इस तरह का है. ठीक है, और ट्राई, उसके बाद इसकी बॉडी एंड आफ्टर दैट इसका कैच ब्लॉक और इसका ये आर्गुमेंट. ओके, एक्सेप्शन ई, और फिर इसके बाद इसकी, और इसके बाद लिखते थे हम लोग फाइनली. ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा क्लीनअप कोड, मतलब जैसे आपने लिखा कॉन डॉट क्लोज मेथड कॉल कर लीजिए, कनेक्शन क्लोज किया आपने यहाँ पे ना, तो वी आर क्लोजिंग द कनेक्शन या. सो नाउ यू विल सी, अब जो आप देखोगे जावा 1.7 में एक फीचर आया है ट्राई विद रिसोर्स. ऐसे यहाँ देखिए आप, इसमें इस वाले ट्राई के साथ में आर्गुमेंट नहीं है. ओके, parenthesis we are not using, but here we are using this parenthesis. यहाँ हम लोग इसको बोल रहे हैं कि रिसोर्स, यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं. एंड वी कैन राइट हियर एच ब्लॉक. वी डू नॉट नीड टू राइट, इसमें फाइनली लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जो रिसोर्स आप यहाँ पे पास कर रहे हो एंड ट्राई विद रिसोर्स, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए क्लोजेबल इंटरफेस से. सो बेसिकली ये क्या करता है, ऑटो क्लोज कर लेता है इसको ना, ऑटोमेटिकली इसका कनेक्शन क्लोज कर लेगा. तो इसमें फाइनली लिखने की जरूरत नहीं है. तो दिस ट्राई विद रिसोर्स केम इन जावा 1.7. सो लुक एट दिस एग्जांपल गाइस. सो हियर द एग्जांपल, ट्राई लिखा है इन्होंने, और देखिए इन्होंने ये ब्रैकेट लिखा है इन्होंने. ओके, ट्राई विद रिसोर्स. तो इस ब्रैकेट के अंदर इन्होंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया. ओके, एंड आफ्टर दैट दे हैव रिटन सम कोड. उसके बाद कैच ब्लॉक. इसमें इन्होंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का क्लोज नहीं किया फाइनली में. ओके, सो ट्राई विथ रिसोर्स एग्जांपल यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेस. तो इसका हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. ओके, interview में ask what is try with the resource, so you would say try with the resource came in Java 1.7. अगर हम try with the resource यूज कर रहे हैं तो फाइनली ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, let me come here and show you. Control Shift F. So what is the problem here? Why it's giving the error? इसमें हम लोगों को एक चीज यूज करना है. ठीक है, ओके. सो file output stream abc.txt string message converting string into byte array में इन्होंने string को convert किया है.
देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम राइट, बाइट एरे को इन्होंने राइट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे हैव रिटन सम मैसेज, फाइल के ऑब्जेक्ट पे बेसिकली वर्क कर रहे हैं. सो लेट मी गिव द एग्जैक्ट लोकेशन. I am giving the location here. This location I am giving. Okay. And double slash abc.txt. Okay. If you will see, ये इन्होंने ट्राई के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है. किसके अंदर बनाया गया? ट्राई के अंदर. अर्लियर जितना भी हमने एग्जांपल किया है, लेट मी शो यू हियर. Okay. So we are creating the object inside the file. Otherwise या तो हम ट्राई से पहले बना रहे थे ऑब्जेक्ट या ट्राई के अंदर, है ना. ट्राई के रिसोर्स में हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे. रिसोर्स मतलब ऑब्जेक्ट. ओके. सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम. मैसेज रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली. इन्होंने फाइल भी क्रिएट कर ली और इसमें मैसेज भी लिख दिया, वेलकम टू जावा पॉइंट. ओके. इसके लिए ये बोल रहे हैं कि ट्राई विद रिसोर्स व्हेन इट विल वर्क. तो लेट मी गो इनसाइड फाइल आउटपुट. फाइल आउटपुट ये जो दिख रहा है आपको, फाइल आउटपुट एक्सटेंड कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम को, एंड आउटपुट स्ट्रीम इंप्लीमेंट्स कर रहा है क्लोजेबल इंटरफेस को. ओके. दिस इज अ क्लोजेबल इंटरफेस. ओके. लेट मी सी व्हाट इन दिस. And it is having one abstract method that is called close. Okay. So auto close कर लेता है. क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं है. ओके. तो लेट मी टेल यू, आई जस्ट वांट टू शो यू हियर. Control O close. They have given this body here. So this is going to auto close the file output stream. So we have to understand this. Okay. So इससे हमें क्या, जैसे ना, ऐसा नहीं हम लोग कि ट्राई के अंदर कोई भी रिसोर्स डाल देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देंगे XYZ, ऐसा नहीं है. हम उसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पुट करेंगे. ओनली दैट ऑब्जेक्ट वी विल पुट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, क्लोज मेथड को ओवरराइड कर रहा होगा. वी कैन पास दैट ऑब्जेक्ट ओनली. ओके. अदरवाइज it will give the problem here. Okay. This will give the problem here. Now let me come here कि अब ये क्या बताने का ट्राई कर रहे थे guys. Any question related to try with the resource? See, earlier हम लोग क्या लिखते थे? try, catch and finally. तीनों स्टेटमेंट पैरेलल में लिखते थे. फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लिखते थे, देखिए, ट्राई के अंदर लिखेंगे रिस्की कोड, कैच के अंदर लिखेंगे हैंडलिंग कोड, और फाइनल के अंदर लिखेंगे क्लीन अप कोड. फाइनल जो एक्टिविटी होती है कि हमें कोई कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने ओपन किया, उसको यूज किया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना. ओके. जावा 1.7 में ट्राई विद रिसोर्स आया और उन्होंने बोला कि आप जो जिसका ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसको ट्राई के अंदर ही आप बना लो, उसके आर्गुमेंट में ही आप बना लो, फिर आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा. इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग जावा 8 में, नॉट जावा 8, एडवांस जावा में हम लोग है ना JDBC का जब कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या यूज किया. आई विल कम ऑन दिस. ओके. तो वहां भी यही यूज किया है हम लोगों ने. ठीक है. अभी लेट्स वी कैन सी दैट वन.
मतलब अगर ट्राई के आर्गुमेंट में इफ यू विल सी दिस, हम लोगों ने इसमें डाउ IMPL इज देयर, डाउ ये रहा, ठीक है। सो वी आर क्रिएटिंग come on, where is the insert user, get connection, it is not। सो हम लोग इसमें जो ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ यूज कर सकते थे। वी कैन यूज दिस हेयर, ओके। तो हम ऐसे मेथड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट मी पुट हेयर, ओके। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, इनसाइड हेयर ओनली, ठीक। तो ये मैं ट्राई के अंदर लिख सकता हूँ, ओके। ये बेसिकली कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा ये। सो हियर यू विल सी, let me go inside this, okay। so what I was trying to say कि आप एक से ज्यादा रिसोर्स भी लिख सकते हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी हमने कहाँ बनाया है, ट्राई के अंदर, ओके। ट्राई विद रिसोर्स, क्या समझ पड़ा हम लोगों को? अब हमें इसमें वी आर यूजिंग दिस, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में कनेक्शन क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं है, ओके, इनसाइड द कैच ब्लॉक। सो ओके, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर कि अगर आपको मैनुअली क्लोज करना है तो आप फाइनली ब्लॉक में लिखिए। अदरवाइज आप रिसोर्स जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, चाहे फाइल का ऑब्जेक्ट हो, फाइल आउटपुट का ऑब्जेक्ट हो, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हमें कहाँ लिखना चाहिए, ट्राई के अंदर। ट्राई विद रिसोर्स यूज करना चाहिए। तो हमें फाइनली ब्लॉक लगाने की जरूरत अब यहाँ पर नहीं है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्राई विद रिसोर्स। इसका एडवांटेज क्या है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो, यहाँ पे रिसोर्स जो पास कर रहे हो वो आपका क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना चाहिए, ओके, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। सी, you can pass any object that implements auto closable, which include all objects which implement this closable interface. The following example writes a string into a file. It uses an interface of file output stream to write data into file. File output stream is a resource that must be closed after the program. तो ये जो हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको क्लोज करना भी एंड में जरूरी है। अगर ये इसमें ना होता, यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ ना बना के इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम यहाँ नहीं बनाते और इसे हम बनाते कहीं ऊपर या हम लोग इसके अंदर ही यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, बट प्रॉब्लम ये होगी यहाँ पे। लेट मी यूज हेयर। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यू हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट हेयर, ओके। अब इसका आप यहाँ पे हटा देते हो तो हमें क्या करना होगा, अब इसके अंदर मैं इसमें नल डाल देता हूँ, ओके। और इसको मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये ट्राई कैच में लिखना होगा मुझे, ओके। तो लेट मी पुट हियर फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू, हमने ये लिख दिया, ओके, राइटिंग दिस, ठीक। अब क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लगाना होगा, फाइनली। और फाइनली के अंदर हमें क्या करना होगा, फाइल, सॉरी गाइस, फाइल आउटपुट स्ट्रीम dot close, we have to put this, we have to use this, okay।
जो कनेक्शन ओपन किया है वी हैव टू क्लोज दिस, वी हैव टू क्लोज एज वेल दिस वन। ओके, जो आप आइदर फाइल का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो फाइनली ब्लॉक में उसको उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना मैंडेटरी है। इससे मैंडेटरी प्रोसेस वी हैव टू डू दिस। अगर हम लोग इसको अगर इसका ऑब्जेक्ट हम लोग हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनसाइड ट्राई। ट्राई के रिसोर्स में अगर ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमें फाइनली ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइज आई मेक यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक क्या है। सॉरी, यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक, अगर ट्राई विद रिसोर्स जावा 1.7 का फीचर यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को इसको फाइनली ब्लॉक इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ like interviewer is going to ask what is this try with resource, so don't be surprised. Okay, try with resource, it's a java 1.7 feature. If we are using try with resource, then we do not need to require to use finally block. Okay, इसमें जो ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं ट्राई के अंदर, इनको ये ऑटो क्लोज कर लेता है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेता है, क्योंकि ये ऑटो क्लोज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये मेक श्योर करना जो ऑब्जेक्ट हम इसमें पास कर रहे हैं वो आपको ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, सो एक से ज्यादा रिसोर्स लिख सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम इसमें बना सकते हैं ट्राई के साथ में, ट्राई विद रिसोर्स। यस, इन्होंने पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम का बनाया, फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट इसी में बनाया। ओके, so that we can do multiple resource multiple classes object we can create inside the try, but please make sure जो क्लास आप इसमें यूज कर रहे हो वो क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, अदरवाइज दिस विल गिव द एरर। ओके, सो ट्राई विद रिसोर्स के साथ में इन्होंने फाइनली ब्लॉक भी लगाया है। ओके, सो फाइनली एग्जीक्यूटेड आफ्टर क्लोजिंग, तो ये भी आप फाइनली ब्लॉक लगा सकते हो। ओके, बट फाइनली का जो एक्चुअल जो टास्क है ना वो इस ट्राई विद रिसोर्स ने कर दिया ऑलरेडी। ओके, बट इफ वी वांट टू राइट वी कैन यूज दैट। ओके, any questions related to try with resource? I mean this is quite important interview question. Okay, what is try with resource? In notes में तो नहीं दिया है इसका। okay, but we are discussing this. This is a feature of Java 1.7. So control flow in try catch finally. अब now ये जो लिखा हुआ है इसमें आप इसका control flow, I mean you can understand how it's working. Okay, so try to read one by one all the steps, and if you are not able to understand then please let me know. Okay, ये सारे steps आप इससे एक बार इसको आपको रीड अबाउट इट। कंट्रोल फ्लो इन नेस्टेड मतलब ट्राई के अंदर ट्राई कैच, और उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा। तो होल द सिनेरियोज आर गिवन हियर, सो रीड अबाउट ऑल द सिनेरियो। इसमें कुछ 14 केसेस दिए हैं, रीड अबाउट देम। इफ एनीवन यू आर मिसिंग प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, okay, so far we discuss about try, what is try, what is catch, what is finally, what is try with resource, what is exception, and custom तरीके से हम इनको how we can handle it. So these are the point we have discussed. Okay, so exception handling में ये जो 5 keywords हैं, okay, these are the 5 keywords हैं इसके अंदर। एक आपका try है, we should have the knowledge of it, try, then catch, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, वी शुड नो अबाउट दिस। ओके, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज। सो ट्राई वी टॉक अबाउट कि रिस्की कोड लिखेंगे इसके अंदर, कैच के अंदर हम लिखेंगे हैंडलिंग कोड, फाइनली के अंदर लिखेंगे क्लीन अप कोड। नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्रो कीवर्ड and what is the use of this throws keyword. Okay,
और this is quite important. Continuously, so many interview questions they asked. What is the difference between throw and throws? Okay, so we should have the knowledge of it. Okay, so what is this throw? THROW, throw. So sometimes we can create exception object manually. कभी कभी हमें exception का object खुद से बनाना पड़ता है. Okay, and उस object को हम hand over करते हैं किसको? JVM को. Explicitly by using throw keyword. मतलब अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर, जैसे ये टेस्ट प्रोग्राम है या यहाँ पे कोई लेट मी क्रिएट वन डेमो प्रोग्राम है, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर ये डेमो है और इसके अंदर मान लीजिए एक्सेप्शन, एक प्रॉब्लम आ गई इस पे, नंबर डिवाइड बाय 0, जैसे 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 0 से. फॉर एग्जांपल वी आर डिवाइडिंग दिस 10 बाय द 0. तो कौन सी एक्सेप्शन आई गाइस इसमें? टेल मी. अर्थमेटिक एक्सेप्शन. अर्थमेटिक. अब मुझे एक चीज बताओ आप, इसमें अर्थमेटिक अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेप्शन रेज कैसे हुई? इसकी स्टोरी क्या है? कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज द स्टोरी? ये कंसोल पे जो मैसेज हमें दिख रहा है, हाउ इट इज कमिंग, you all should be to position to explain this story. Okay, so जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आ रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर करेगा किसको? जेबीएम को. एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैन मेथड की. अब जेबीएम क्या करेगा? देखेगा इस मैन ने इसको हैंडल किया है क्या? द आंसर इज नो. सो ये क्या करेगा? स्टैक से इसकी एंट्री को डिस्ट्रॉय करेगा, हटा देगा, और प्लस इसको अबनॉर्मली टर्मिनेट करने से पहले ये हैंड ओवर कर देगा किसको? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को. और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड यूज करता है कि कंसोल पर जिससे ये मैसेज शो कर पाए कि एक्सेप्शन क्या आई है. और फिर जेबीएम इसको क्या करता है? इस मैन को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देता है. दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द सीन. गाइस, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस स्टोरी को? एनीवन? काजोल, अवंतिका? हिंदी में सर? हाँ, हिंदी में एक्सप्लेन करो. आप जरा बताओ इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेप्शन कैसे थ्रो हो रही है, उस कोशिश करो. सर ये तो आउटपुट हो गया ना इसका, जितना भी इस पे आता है. हाँ, वो मतलब ये आउटपुट तो ठीक है, मतलब रेज हुई है एक्सेप्शन, प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, फिर आप एक्सप्लेन करना इसको. ये एबनॉर्मली टर्मिनेट कैसे हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेन डॉट डॉट डॉट. ये स्टेटमेंट भी मैंने इसके बाद लिख दी. अब ये इसको नहीं एग्जीक्यूट करने वाला, क्योंकि इससे पहले क्या आ गई थी? एक्सेप्शन आ गई. ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है. ओके, नाउ टेल मी हाउ दिस केम. ये जो एक्सेप्शन रेज हुई है, इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? हु कैन एक्सप्लेन दिस? यस और हाँ, सर प्रोग्राम जो है हमारा पूरी तरीके से सर रन नहीं हो पा रहा है ना. पहले एक्सेप्शन आ गया, अगर पहले रुकावट आ गई तो फिर उसका तो कुछ आएगा नहीं ना सर. क्वेश्चन ये है बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी चली होगी? आई मीन प्रिंट स्टैक ट्रेस इसके अंदर में. हाँ, शौरबिंद आप एक्सप्लेन करो. व्हाट यू अंडरस्टैंड? सर जब ये एक्सेप्शन आ रही है तो जिस मेथड में ये कॉल हो रहा है, तो उस मेथड की जिम्मेदारी है किसका? ऑब्जेक्ट बना है. करेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट? जो भी एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है, जैसे अर्थमेटिक है या इसकी जगह कोई और एक्सेप्शन हो सकती है. गुड. तो जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आ रही है, उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और किसको हैंडओवर करेगा? सौरवेन? जेवीएम को. अब जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चेक करेगा कि क्या कोई इसमें हैंडलिंग कोड है. इसमें तो है नहीं कोई हैंडलिंग कोड, राइट? फिर ये किसको हैंडओवर करेगा? ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल. हाँ,
अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हैंड ओवर कर देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को, और इस प्रोग्राम को वो अबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा, और डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एक कंसोल पे मैसेज को शो कर देगा। ये स्टोरी हमें पता होना चाहिए, ये इंटरनल चल रही है, इसके बैकग्राउंड में चल रही है। ओके, दिस इज रनिंग बिहाइंड द सीन। ओके, सो ऑब्जेक्ट इसने कैसे बनाया होगा, हाउ इट क्रिएट, मतलब है ना, तो उसी का ये बता रहे हैं। इसने कुछ ऐसा किया होगा, थ्रोज, यहाँ पे जैसी एक्सेप्शन आई, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मैसेज इसमें पास कर दिया इन्होंने, डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0, ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा इसने, और इस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर कर दिया किसको, जेबीएम को। किसने, इस मेन मेथड ने। जेबीएम ने देखा इसके अंदर कि मेन ने कहीं इसको हैंडल कर रखा है, द आंसर इज नो। तो इसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करने से पहले इस ऑब्जेक्ट को ये हैंड ओवर कर देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और वो इंटरनल यूज करता है प्रिंट स्टेटस मेथड को, जिसकी वजह से ये कंसोल पे मैसेज दिखा पाता है। और प्रिंट स्टेटस क्या दिखाता है, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन एंड स्टेटस। नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन once again this? अजय, अजय इन दिस क्लास, अजय आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अजय, आशीष, हुएवर एक्सप्लेन कर सकते हो? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? तो ये मेन मेथड, हु इज गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मेन मेथड। जिस भी मेथड के अंदर, आप इसको ही क्यों बोल रहे हो, यहां से मान लो, यस, मान लीजिए इसके अंदर से सर इसको हैंडल नहीं करता, इसलिए मेन मेथड रिस्पॉन्सिबल है। सो मान लीजिए हमने यहाँ से डू स्टेप कॉल कर लिया, और डू स्टेप के अंदर पब्लिक स्टैटिक डू स्टेप कोई मेथड है, और इसके अंदर मेन के भारी तो लिखा है मैंने, डू पब्लिक वॉइड, ओके, डू स्टेप। अब मान लो इसके अंदर ये एक्सेप्शन है ना, यहाँ पर आ रही है, यहाँ से तो केवल मैन से कॉल कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन मान ली इसके अंदर हमने एक और कर लिया, डू मोर स्टेप, इसके अंदर हमने एक और मेथड कॉल कर लिया, एंड यहाँ पे डू मोर स्टेप की बॉडी दे देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू मोर स्टेप, इसकी बॉडी हम यहाँ दे रहे हैं। ओके, और इसके अंदर मान लो कोई एक्सेप्शन आई है, ये जो एक्सेप्शन आई है वो इसके अंदर आई। अब ये डू मोर स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और हैंडओवर कर देगा किसको, जेबीएम को। अब जेबीएम क्या करेगा, देखेगा डू मोर स्टेप ने कोई हैंडलर कोड लिखा है क्या, द आंसर इज नो। सो ये क्या करेगा, इसको स्टैक से इसकी एंट्री को डिस्ट्रॉय करेगा और इसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा। फिर देखेगा जहां से डू मोर स्टेप कॉल हो रहा है, मतलब डू स्टेप के अंदर से, इसमें कोई हैंडलिंग कोड है, द आंसर इज नो। इसको भी स्टैक से एंट्री रिमूव करेगा और इसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा। इसके बाद देखेगा कि जहां से ये कॉल हो रहा है उसने कोई हैंडलिंग कोड लिखा है क्या, द आंसर इज नो। तो क्या करेगा, मेन को डिस्ट्रॉय करने से पहले ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से पास हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हैंडओवर करेगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और वो प्रिंट स्टैक की मदद से कंसोल पे मैसेज शो करेगा और ये एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा ऑल द मेथड्स एंट्री फ्रॉम द स्टैक मेमोरी जेबीएम इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द सीन। कोई भी एक्सेप्शन आपकी आ रही है, ओके, एनी एक्सेप्शन इज कमिंग, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपकी आई लाइन नंबर 18 डू मोर स्टेप के अंदर, और उसके बाद ये वन बाय वन सबको उसने डिस्ट्रॉय किया। ओके, अब हम देखते हैं इसमें थ्रोज का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ, आई होप इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, नाउ वी आर प्रोसीडिंग।
अभी बोल रहे कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस वी हैव टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली। कभी कभी हमें खुद एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है और उसको हम हैंडओवर करते हैं किसको, जेबीएम को, एक्सप्लिसिटली यूजिंग थ्रो कीवर्ड। सो थ्रो कीवर्ड का यूज क्या है, थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के मैनुअली खुद से और उसको हैंडओवर कर सकते हैं किसको, जेबीएम को। ओके, टू हैंडओवर अवर क्रिएटेड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द जेबीएम मैनुअली। और ये बेसिकली इस एक्सेप्शन का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो थ्रो कीवर्ड क्या करता है, थ्रो कीवर्ड इज यूज टू हैंडओवर द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू जेबीएम। जो हमने मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको जेबीएम को हैंडओवर करने के लिए वी यूज दिस थ्रो कीवर्ड। हम कैसे जेबीएम को ये ऑब्जेक्ट ऑफर करेंगे, कैसे उसको हैंडओवर करेंगे। सो जेबीएम हम यूज करते हैं THROW, थ्रो कीवर्ड। यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड बता सकते हो आप लोग, टेल मी गाइस, एनीवन कैन टेल, आशीष, संतोष, यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। थ्रो एक्सेप्शन मैन्युअली। थ्रो एक्सेप्शन मैनुअली नहीं, अभी तो आपको स्टोरी सुनाया ना मैंने। हाँ, आप खुद हैंडल नहीं करना चाह रहे, किसी कस्टमाइज मतलब एक्सप्रेशन करते हैं। नहीं यार, काजल आप बता सकते हो। अभी अभी मैंने क्या बताया, कभी कभी हमें कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाता है हमें खुद को, और उस कस्टम ऑब्जेक्ट को हम हैंडओवर करते हैं किसको, जेबीएम को मैनुअली। ये काम है, जेबीएम को कुछ और लैंग्वेज समझनी पड़ती, हम उसको थ्रो कीवर्ड की मदद से ही हैंडओवर करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमें जेबीएम को देना है, तो कैसे देंगे हम लोग, वी विल यूज थ्रो कीवर्ड। और सर अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, तो जेबीएम को फिर कैसे वो समझ में फिर कैसे आएगा सर? डायरेक्ट क्या प्रिंट कर दिया आपने, व्हाट यू कुछ भी सर, कुछ भी हमने सिस आउट में प्रिंट आउट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा, फिर कैसे होगा? फिर क्या होगा, मतलब फिर क्या कहना चाह रहे हो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर अब एग्जीक्यूट प्रोग्राम आपका जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नथिंग विल हैपन। क्वेश्चन आपका ऐसे होना चाहिए कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना के दे ही क्यों रहे हैं जेबीएम को। न देंगे फिर तो मैनुअली एक आपका सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बना के ऐसा कौन सा बिजनेस सिनेरियो है जहां पे हम ऑब्जेक्ट बना के जेबीएम को हैंडओवर करते हैं। थ्रो कीवर्ड का यूज क्या है, थोड़ा सा जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है उसको मॉडिफाई करो। सो अब एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मैनुअली एंड हैंड ओवर टू जेबीएम। ये कहीं लिख के रखो इस स्टेटमेंट को, थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट मैनुअली ऑफ एक्सेप्शन and hand over that object to JVM. That is the use of throw keyword. Okay. So throw का मतलब ठीक है कि हम मैनुअली कहीं से एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम थ्रो नहीं, हम हैंड ओवर कर रहे हैं JVM को। ओके, सो ना ऐसा कौन सा बिजनेस सिनेरियो है कि जब हमें मैनुअली एक्सेप्शन थ्रो कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो एक मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल यूज केस बताता हूँ। आपने जीमेल में अकाउंट बनाया, ओके, तो जनरली हम सभी लोग अकाउंट बनाते हैं जीमेल में। अब अगर आप अभी बनाओगे और नॉर्मल सा एक एरर आती है, एरर के एक मैसेज आता है कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज। जो हम सोच रहे होते हैं ईमेल आईडी वो ऑलरेडी किसी न किसी ने बनाई होती है। सोचो उसकी बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चलती होगी। बिहाइंड द सीन द स्टोरी वुड बी इन दिस वे कि वो क्या करता होगा, मैनुअली जैसे उसने उसका आपके ईमेल आईडी को लेके गया और डेटाबेस में चेक किया कि इससे कहीं पहले से तो कोई बनी नहीं है इसके अंदर ईमेल आईडी। द आंसर इज नो। अगर है, बनी हुई है, उस केस में हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी होगी। उस केस में हमें यूज करना होगा थ्रो, और हमने मान लीजिए कोई एक्सेप्शन बनाई है खुद की जिसका नाम है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। हमने थ्रो कर दिया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, हमने वहां से थ्रो कर दिया कि ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और उसके अंदर मैसेज हमने पास कर दिया कि ये जो दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई बाय सम अदर ईमेल। हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, उसके एंड यूजर को समझ पड़ रहा है कि वो कोई मैसेज आ रहा है कि ईमेल पहले से ही बनी हुई है।
but behind the scene we are throwing the exception. खुद के पहले हमने कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की, जैसे अर्थमेटिक तो पहले से ही बनी हुई है, हम खुद की एक्सेप्शन एक क्रिएट करेंगे और उसको हम थ्रो करेंगे विद दिस मैसेज, ओके। और जेबीएम क्या करेगा, इसको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल को देगा, ये मैसेज बेसिकली शो करेगा और उस मैसेज को हम लोग, दैट वुड बी द यूजर फ्रेंडली मैसेज, ओके। दिस इज अ लाइव, आई मीन व्हाट आई विल से रियल बिजनेस यूज केस। यहाँ पे आपका इसका भी यूज केस है कि कस्टम एक्सेप्शन बनाने की नीड कब होती है और उसको थ्रो कराने की नीड कब होती है। जब हम इंटेंशनली जानबूझ के किसी पर्टिकुलर लाइन से कोई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के और हैंडओवर करना चाहते हैं जेबीएम को, वो एक्सेप्शन हो सकती हमारी बनाई हुई हो या वो हो सकती है पहले से ही जो एक्सेप्शन है उनमें से किसी का ऑब्जेक्ट हो। जनरली THROW जो थ्रो है उसका काम क्या है, एक्सेप्शन को थ्रो कराना किसी पर्टिकुलर प्लेस से। थ्रो कराने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उस एक्सेप्शन का और उस एक्सेप्शन को हैंडओवर करे किसको, जेबीएम को, और जेबीएम फिर अपने हिसाब से उसको हैंडल करेगा, ओके। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड द THROW थ्रो। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सर थ्रो, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि सपोज मतलब हम ऐसा कुछ क्रिएट कर दे एक्सेप्शन, जैसे कि एक ईमेल आईडी हम चाहे कि मतलब एक ही ईमेल आईडी के मतलब दो ईमेल आईडी बन जाए, ऐसा हो सकता है? तो कंफ्यूजन नहीं होगा उसके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपका उसमें कि वो आपको ईमेल भेज रहा है और दूसरे को चला जा रहा है, प्राइवेसी इसमें आपकी वो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगा ना काजू, आपकी सीक्रेट ईमेल किसी और को भी जा रही है साथ में। हाँ सर, है ये ना, तो ईमेल का मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, आपकी यूनिक आईडी होती है, वो जिसको भेजोगे उसी को जाएगी, है ना। सो आई होप गाइज, जो हम लोगों का आज जो डिस्कशन है, हमने ट्राई की बात की, कैच की बात की, फाइनली की बात की और ट्राई विद रिसोर्स की बात की, सबसे इम्पोर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद हमने थ्रो की बात की। अब थ्रो का प्रैक्टिकल हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं और थ्रोज कीवर्ड का भी प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो हम लोगों को ये 5 कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। थ्रो कब यूज करते हैं, थ्रोज कब यूज करते हैं, राइट। ट्राई, कैच, फाइनली कब यूज करते हैं, फाइनली का एक्चुअल यूज क्या है, रिटर्न वर्सेस फाइनली। अगर रिटर्न स्टेटमेंट भी कहीं पे लगा रहे हैं स्टिल फाइनली एग्जीक्यूट होगा। एक सिनेरियो ऐसा बनता है जब फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब आप जेबीएम को ही शट डाउन कर दो, देन ओनली योर फाइनली विल नॉट एग्जीक्यूटेड। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आई मीन वी हैव कवर्ड, ओके, बट स्टिल स्टोरी इज नॉट ओवर, so tomorrow again we are going to discuss on it, okay। any questions guys for the today? so try to do the some programs practice, जो इसमें सिनेरियो है ना, वो सारे सिनेरियो 14-15 सिनेरियो है, try to cover those and come with some questions so we can discuss on it, okay। so anyone who's old guys who give the interview and face the question related to throws finally? Uttam, did you face question related to this? Yes, sir. Today, कल की